one body was found at the bottom of the shaft. Yesterday, the water is very murky and the water is quite acidic, so nothing is visible. So today 4 divers had gone down, NDRF and Army divers. They were able to retrieve one body from the bottom of the shaft. Now we have arterial tunnels going in every side. The ROV has done one round. The Navy ROV has done one round of the entire shaft. The ROV has both photography and sonar capabilities. That has not found anything. Now Navy divers are going down to the shaft. We'll first clear out the shaft and then start entering the tunnels. In the meanwhile, efforts are on to continuously de-water the well. It seems that the well is connected down below in the subterranean level into some sort of a water source, because of which, even though we are pulling out water, water levels are not receding. So once the ROV goes into the tunnels, we'll have a better idea. This is a long drawn out process, but the one thing I want to say is that the way everybody has come together in the relief efforts, whether it is the state government, the Army, the Navy, the Air Force for transporting everybody, ONGC is here with their pumps, Coal India experts have already reached, they are bringing in their pumps. So everybody is working together and we hope we'll have more results soon. We've had some clarity, we will get more clarity soon. Thank you. Any further tracing of the other persons? See, right now, I just explained to you the procedure. So the tracing will take place with the procedure. As far as the other person is concerned, he was a local boy, he is identified, and they have sent the body right now for post-mortem. Inquest first, then post-mortem to Haflong, because post-mortem facilities are available in Haflong. And after that, his family is being contacted, and arrangements will be made to hand over the body with proper respect and all formalities. Thank you. जी, ये अभी डाइव किया गया था, कल भी डाइव किया था, कई बार डाइव किया गया कल, लेकिन कल कुछ नहीं मिल पाया था, तो आज फिर हमने मॉर्निंग में एक डाइव किया है। ये जॉइंट ऑपरेशन था और इसमें आर्मी के डाइवर्स भी हमारे साथ थे और इसमें एक बॉडी रिसीव हुई है, उसको अभी ऊपर लाया गया है। डाइविंग अपने आप में बहुत चैलेंजिंग ऑपरेशन होता है, इसलिए जब भी कभी डाइवर्स का सिलेक्शन किया जाता है वो बहुत केयरफुली किया जाता है। जो भी आदमी डाइवर बनता है, नंबर 1 उसकी फिजिकल फिटनेस बिल्कुल हाई स्केल की होनी चाहिए। बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि उसकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी हो, उसको स्विमिंग बहुत अच्छी आती हो और उसके बावजूद उसको कई तरह के इंस्टीट्यूशन में बेसिक फिर एडवांस ट्रेनिंग्स करनी होती है और कई ट्रेनिंग के बाद और कई प्रैक्टिस डाइव के बाद वो एक एक्सपर्ट डाइवर बनता है। तो ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के एनवायरनमेंट में किसी भी दूसरे पानी में डाइव करना एक अलग हर इस तरह की डाइविंग एक टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस है, जिसमें कि बहुत ही कन्फाइंड स्पेस है, बहुत ही अंधेरा अंदर होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, फिर हमें पता नहीं होता कि इसके नीचे क्या क्या है, क्योंकि जब इस तरह का कुछ कुआं है उसके नीचे कई कुछ हो सकता है, कुछ इक्विपमेंट हो सकते हैं, कुछ और मशीन्स हो सकती हैं, तो ये सब बहुत रिस्की हो जाता है, तो बहुत ध्यान से इस तरह के ऑपरेशन को करना पड़ता है। सर, ये कंटिन्यू मतलब कि ये जॉइंट ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा, कब तक ये संभावना है कि आप लोग क्या आशा रखते हैं कि पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए? ये डिपेंड करता है कि नीचे सिचुएशन कैसी है, क्योंकि जैसे हमें बताया गया कि नीचे रैट होल्स है और अब अगर बाकी लोग कहाँ पे हैं ये इस पर डिपेंड करता है। ये अब क्या ये कहना रियली बहुत मुश्किल है कि इसमें कितना टाइम लग जाएगा। Yes, actually we attempted one dive and this was a joint operation with the army divers. They also went inside and one body has been recovered. So the task is a very challenging task. Yeah, of course, diving is always a challenging task. It's very difficult going inside the water, that too murky water. There is hardly anything visible and we do not know what is inside. So diving is always a risky operation, and in particular this type of diving in a very confined area, very congested area, dark environment, murky water, this is very difficult. So, but it's challenging, but our people went inside. Our divers were also there.
and one body has been recovered. थैंक यू सो मच। एम गोगोई। इससे बताइए कि आप लोगों ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है उसमें एक बॉडी रिकवर किया है, तो कैसे आप लोग वहाँ पर क्या सिचुएशन? ये हमारा 2 दिन का मेहनत है अभी तक। 2 दिन ये हमने कल भी मेहनत किया, लेकिन काम हमको मिला नहीं, लेकिन हमने मन का थोड़ा हौसला ऊपर रखा है। ये गहराई कम से कम 130-40 फीट होगा। फिर हम दोबारा आज सुबह से ट्राई किया। सुबह से जाके पानी काफी ठंड था और विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। उसके बाद नीचे जाके हम गया अंदर। जाने के बाद हमको उनको 10-12 मिनट का बाद हम सर्चिंग करने के बाद एक उनका हाथ मिला। हाथ मिल के हम ऊपर उनको रिकवरी करके लाए। अभी भी एक्चुअली अंदर में पानी बहुत है। यस, पानी बहुत है और बहुत ठंड है, और उसमें अंदर के लिए जाने का सुरंग भी है उसमें। मतलब ये चैलेंजिंग टास्क। यस, बिल्कुल चैलेंजिंग है। आज एक बॉडी रिकवर हुआ है और फिर से हमारे आर्मी के टीम जो थे वही लोग नीचे गए थे, उन्होंने एक बॉडी रिकवर किया। फिर से उनका टीम गया है और उनका निकलने के बाद हमारा नेवी का जो टीम है, नेवी का टीम भी वो लोग फिर से अंदर जाएंगे। और हम लोगों ने इसके साथ साथ पानी को डिवाटरिंग करने के लिए भी हम लोगों ने काम शुरू किए। 2 पंप आने वाला है, एक अभी लगभग पहुंच ही चुका है जो ONGC का पंप है, हाई कैपेसिटी पंप है, जिसमें ऑलमोस्ट 1600 लीटर पर मिनट उसका कैपेसिटी है। और साथ एक कोल इंडिया से भी एक आने वाला है। तो दोनों आने के साथ हम लोग अभी अगले 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा, हम लोग शुरू करेंगे। और दूसरा वाला आने से फिर ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग पानी को अगर निकाल सके। इसके अंदर में काफी चैनल्स है, काफी एटरीज है, तो उसके अंदर जाके ये लोग काम कर सके। जो बॉडी रिकवर हुआ है उसका कोई अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। अभी हम लोग फैमिली मेंबर्स कुछ आ रहे हैं तो उनको दिखाएंगे हम लोग, उसके बाद ही उसका ये करेंगे। जॉइंट जो एयरपोर्ट ऑपरेशन चल रहे हैं तो उसका मॉनिटरिंग भी खुद CM खुद कर रहे हैं, तो MHA भी? हाँ, MHA भी है। CM साहब सबके साथ कोऑर्डिनेशन करके इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी सबके साथ, फिर SDRF, NDRF, असम राइफल, MHA के साथ हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, हम सबके साथ CM साहब इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और टाइम टू टाइम CM साहब इसका क्या हो रहा है सबसे बात भी कर रहे हैं। तो CM बहुत ज्यादा इसके लिए सीरियस है ताकि हम लोग जो भी लोग इसमें हैं उनका बॉडी हो, जो भी हम लोग निकाल पाए। 9 लोगों का नाम CM सर ने खुद ट्वीट किया है। इसके बाद कोई और लोग अभी तक कोई आया नहीं, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि 10 लोग था, कोई 12 लोग ऐसे बता रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा मतलब ये पानी हम लोग अगर लेवल कम कर सके तो इसका हम लोग पूरा आपको बता पाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो विक्टिम्स फैमिली है उनको कोई सपोर्ट अभी तक अनाउंस नहीं है। फर्स्ट बॉडी रिकवर हुआ है, उसके बाद ही कोई अनाउंस करेगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।